উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কলা সংস্কৃতিক বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বিশেষ উদ্যোগ বুলি ক'ব লাগিব। অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ যি চিল প্ৰকল্পৰ আধাৰত এতিয়া এনেদৰে শিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু এই শিক্ষাৰ্থীসকল ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে আৰু তেখেতসকলে অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যসমূহত যাব আৰু তেওঁলোকে এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে বা কলা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এনেদৰে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে। ডিঙিত একোখনকৈ গামোচা পৰিধান কৰি আহিছে। অসমৰ আচলতে যি চানেকি বুলি ক'ব লাগিব, অসমৰ চানেকি গামোচাখন প্ৰত্যেকজন আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে তেওঁলোকে পৰিধান কৰিছে, যিহেতু গামোচাখন অসমৰ চানেকি বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ তেওঁলোক বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু ডিঙিত অসমৰ যি চানেকি গামোচা সেই গামোচাখন এনেদৰে তেওঁলোকে পৰিধান কৰি আছে। মই অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এই প্ৰকল্পটোৰ কি। চিল নামৰ এটা প্ৰকল্প বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ 1966 চনতে আৰম্ভ কৰা, 1966 আৰম্ভ কৰা, যে ষ্টুডেণ্টছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ইণ্টাৰষ্টেট লিভিং বুলি, যাক আমি অসমীয়াত অন্তঃৰাজ্য মানে জীৱন দৰ্শন বুলি কওঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্য ৰাজ্যবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা মানে ব্যক্তিসকলৰ মাজত যি এক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটো গাঢ় কৰা, এটা সাংস্কৃতিক মানে এটা আদান প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁ আৰু দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা ইয়াত আহে। আমি বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বা চিলৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ লগত তেওঁলোকক তাত লৈ যোৱা হয়। তাত কোনো ধৰণৰ গেষ্ট হাউচ বা কোনো লজত নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনজাতীয় ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত ৰখা হয় তেওঁলোকক, যাতে তেওঁলোকে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক যিটো মানে ভাৱধাৰা বা আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিটো আদান প্ৰদান সেইটো যাতে ভালদৰে বুজি পায়, তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া 1966 চনৰ পৰা আমি 60 বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিলোঁ আৰু এই বছৰো আমি ইয়াত 75জন বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যবিলাকৰ পৰা ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত 15 দিন আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত থাকিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকত যাব, থাকি পেলাই তাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক যিবিলাক মানে তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণা বা আমি অভিজ্ঞতা বুলি কওঁ, সেইবিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে 20 তাৰিখে আকৌ নিজৰ ৰাজ্যবিলাকলৈ যাব। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে এটা সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগত অন্য ৰাজ্যবিলাকৰ যিটো সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটো অধিক গাঢ় কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যিটো সংস্কৃতি আছে, সেই সংস্কৃতি যাতে সকলোৱে বাৰ্তাটো লৈ যাব পাৰে, তাৰ এটা বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰয়াস আছে। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भाग्यनगर यानी कि हैदराबाद से। हैदराबाद। असम में सबसे ज़्यादा एक ना, मैं इधर सबसे पहले बार आया हूँ, तो जिस तरह से स्वागत किया है अभी के लिए तो ये पसंद आया। बाकी आपका ताली खाना ये भी एकदम ठीक है, आपका वेदर भी बहुत इतना है, और बाकी आगे एक्सप्लोर करेंगे। आगे आप कहाँ जाएंगे आसाम में? ये पहली बात, ये कामाख्या मंदिर तो देखना है, तो वो शक्तिपीठ बहुत सुना है उसके बारे में, तो पहला मेरा लिस्ट में तो वो है। बाकी जैसे टाइम परमिट करेगी बाकी जगह पता करेंगे, थोड़ा जानकारी लेंगे और देखने उधर ज़रूर जाएंगे। अभी इतना अंदाज़ा नहीं है, पहले बार आया हूँ। असम में बेसिकली अगर यहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो एक टूरिस्ट है और दूसरा अट्रैक्शन है। दूसरा आज का जो सुबह स्वागत हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जितने भी कार्यकर्ता जम्मू सभी स्टेट से आए हुए हैं, वो एक बहुत अट्रैक्शन का केंद्र था स्वागत का। उनके लिए मैं अपने जम्मू कश्मीर की ओर से दिल से की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। वो बाकी जम्मू कश्मीर से आए हो? जी मेरा नाम सुनील सिंह है, जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी ये गामूसा के बारे में आपको पता है क्या? असम की गामूसा? हाँ, मुझे इतना मालूम नहीं था, बट जब इन्होंने पहनाया तो मुझे लगा कि जहाँ का जो नरेंद्र मोदी भी ये गामूसा ही लेता है। जी मैं बताना चाहूँगा। और ये जो उनकी पेंटिंग जहाँ पे है, मुझे लगता है जहाँ के ट्रेडिशन को एक रिप्रेजेंट करती है, और जहाँ के जो मुझे लगता है कॉटन है ये, तो कॉटन भी इनका जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ के जो पहले फार्मर्स जम्मू कश्मीर इनके असम के सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको मैं ज़्यादा देखता था इनको पहना हुआ, तो मुझे लगता है कि ये रिप्रेजेंट करता है आपका जितना भी कल्चर है यहाँ का उसको। आप कहाँ घूमेंगे असम में? अभी हमारे लिए तो इतना बताया नहीं गया है, बट मुझे जो शाम को कॉल आई थी वो अरुणाचल प्रदेश के लिए आई है, तो शायद मुझे वहाँ के लिए भेजा जाए।
अभी हमारे 2 दिन आए हुए हैं, जो शाम को जहाँ अभी जो हमें दिया गया है तो वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। और जहाँ आज अभी जो खाने के साथ जैसे चावल थे, सब्जी थी, उसके साथ एक उन्होंने आलू को बना के और उसके साथ क्या कहते हैं ग्राउंड नट्स, वो जो मिक्स करके दिया था वो अलग था, क्योंकि वो हम जम्मू कश्मीर में कभी पाया नहीं ऐसा, तो वो अलग था, अच्छा था, टेस्टी था वो। जी जी, धन्यवाद। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश। असम में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? असम का जो नेचुरल सीनरी है वो मुझे लगता है कि वन ऑफ इट्स ओन है, और इसको एक्सपीरियंस करने का फर्स्ट पर्सन में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ के कल्चर को, यहाँ के नेचर को, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या क्या कहना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट हमारे लिए, हम सभी के लिए, और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को लेकर जो गैप है उस कल्चर के बारे में लोगों को बताना, उन तक पहुंचाना कि यहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं, उन भ्रांतियों को समाप्त करना, और कुछ भ्रांतियाँ जो हैं उनको समाप्त करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना कि यहाँ का कल्चर कितना खूबसूरत है, अपने आप में कितना वाजिब है। तो वो मुझे लगता है कि एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर लोगों तक ये पहुँचाएंगे कि अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई और बहनों के दिल में हमारे लिए कितना स्नेह है। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं गुजरात से आई हूँ। मैं जब आसाम में हम ट्रेन से आए तो हमने ट्रेन से आते वक्त देखा कि यहाँ के जो घर की बनावट है वो डिफरेंट है हमारे घरों से, और यहाँ पे पूरे रास्ते हमने ग्रीनरी देखी है, तो ऐसे हिल्स वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के लोग कल्चर, उनका कल्चर बहुत रिच है, जितना हम शायद गूगल करके उतना नहीं जान पाते जितना हम यहाँ पे आके जान पाए हैं। और ज़्यादा अभी 15 दिन रुकने वाले हैं, तो उसमें भी हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो हिल्स वगैरह हैं, वैलीज़ हैं, तो उसे हम एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करेंगे, और लोगों के बीच जाकर उनके घर में कौन कौन से रिचुअल्स हैं वो जो फॉलो करते हैं, जो हम नहीं जानते, क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं तो वहाँ का लोकल जो न्यूज़ मीडिया बताती है उतना ही हम जान पाते, पर उन लोगों से मिलकर उन लोगों की भावनाएं क्या है, वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब भी हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं उत्तर प्रदेश। असम के बारे में क्या बताना चाहिए? असम के बारे में अभी जैसा कि हम लोग आ रहे थे रास्ते, तो जैसा हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो जैसा मैंने ट्रेन में देखा कि यहाँ पे जो घरों की बनावट है ये थोड़ा झोपड़ीनुमा, थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारे उत्तर प्रदेश से थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है ये। और यहाँ पे जो क्रॉप्स होती है, मुझे लगता है यहाँ पे चावल ज़्यादा होता है, चावल, और ये यहाँ पे चाय का तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, चाय बहुत होती है यहाँ पे। और फिर जैसे कि यहाँ मैंने रास्ते में देखा केले का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और उसके बाद अभी जो हम लोग यहाँ सेल में आए हैं तो 15 दिन रह के हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, लोग कैसे रहते हैं, क्या रिचुअल्स हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, कैसे यहाँ पे जलवायु कैसी है, ये सब हम 15 दिन में एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। आप कहाँ घूमेंगे? अभी तो मुझे गुवाहाटी ही रहना है, और फिर उसके बाद संगठन जैसा डिसाइड करता है, क्योंकि अभी क्लियर तो मुझे नहीं पता है कहाँ कहाँ जाना है। तो जैसे मैंने सुना है यहाँ पे कामाख्या देवी टेम्पल बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ भी जाना चाहूँगी, और जो भी फेमस जगह हैं अगर संगठन मुझे चांस देता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। जी नमस्ते, आप कहाँ से आ रहे हो? मैं भोपाल से हूँ, मध्य भारत एमपी से। असम के बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या बताना चाहिए? अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे ये 7 सिस्टर्स जैसे बोला गया है इनको, 7 स्टेट को, सिक्किम को छोड़ के। और नॉर्थ ईस्ट का क्या है कि इससे 3-4 देशों की जो बॉर्डर है वो इसमें शेयर होती है। इसके अंदर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि। और ये हमारा एक भारत का बहुत ही विभिन्न, मतलब एक अलग कल्चर वाला वो है, अपनी इसकी खुद संस्कृति है। और जैसे कि भारत में कहा जाता है कि विविध भाषा विविध वेश फिर भी अपना एक देश, तो ऐसा एक नॉर्थ ईस्ट अपना कल्चर को लेके इसमें अपने आप में विद्यमान है। असम में मेरा वैसे तो पहली बार आना हुआ है, लेकिन असम का यहाँ के लोगों की बात करना भी अच्छा है थोड़ा। इनका कल्चर का एक डिफरेंट, मतलब एक उनकी एसेंस है, खुद एक सुगंध है। तो कहने का मतलब कि अगर उनसे मिलते हैं तो उनमें एक अतिथि सत्कार की भावना अच्छी है। दूसरी बात, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर अलग अलग चाय के बागान जैसे बोले गए हैं, पान के पत्ते अलग होते हैं यहाँ पे। जैसे बाकी गुवाहाटी यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी, ऐसी कुछ जानकारी मेरे पास है और वो अच्छी चीज़ लगती हैं।